Okay, friends, so once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing chapter number 11, and on the last lecture, we had completely discussed the Einstein's explanation regarding the photoelectric effect, and that was a very intelligent uh, thing to explain the photoelectric effect. So what Einstein had done, Einstein had simply assumed that the radiation is absorbed. Radiation is absorbed by the metal, not in the form of wave, it is in the form of absorption, it takes place in the form of photons. And each photon is consist of the energy of, each photon is consist of energy, बोलिए HF एच एफ। HF तो ऐसा मान के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग जितने भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे वो आराम से हम समझ सके थे। आइंस्टाइन ने उसको समझा दिया था। अब हम आज इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तो आज के सेशन में ये जो चैप्टर के न्यूमेरिकल जितने भी है वो आपके कंटेंट में जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको आज फिनिश करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग ऑल द न्यूमेरिकल्स, लेट मी write down the equations which we had learned in this throughout the chapter. So the chapter number 11 name is dual nature. So this is the chapter and we're going to discuss initially all the equations what so far we had learned, and then after we switch to the numericals. Okay, चलो सबसे पहले कोई मुझे ये बताएगा what is the condition for the photoelectric emission? Condition for photoelectric emission. कोई बताएगा मुझे? photon F must be should in be quantization. Wrong answer. Your F incident should be greater than equal must to F be naught. to either threshold frequency or it should be larger than the threshold frequency. Or we can also say that your incident wavelength must be either equal or less than the threshold wavelength. देखो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना मतलब वेवलेंथ को डिक्रीज करना, तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए, वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes. सेकंड, relation between threshold frequency and work function. चलो किसी को पता है what is the relation between the threshold frequency and work function? Threshold work function is phi naught, so is equals to, I can say, hf0. It is also written as sc by lambda naught, where f naught is the threshold frequency and lambda naught is a threshold wavelength. Is that clear? Yes, sir. चलो tell me relation between maximum kinetic energy of emitted photoelectron and stopping potential. चलो कोई बताएगा मुझे?
स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है? So we know that Kmax is equals to, we can also write half mv max square is equals to, I can say, EV naught. याद है friends? So that was the relation between the maximum kinetic energy and the stopping potential. Is it okay, friends? Where V naught is a stopping potential. Is that clear? Yes, sir. Yes. Okay. Einstein explanation. Explanation of photoelectric effect. So what was the basic equation? The equation was Kmax is equals to HF minus phi naught. You can also write this equation as a EV0 is equals to HF minus HF0. So you can also write this formula as a, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन दिया था वो ये था कि Kmax is equals to HF minus phi naught. So EV0 is equals to HF minus HF naught. तो अगर V0 को सब जगह इक्वेशन बनाते हो तो इट विल बी इक्वल्स टू H by E F minus H by E F naught. So इसका मतलब ऐसा हुआ कि if you draw the graph of V0 versus F, that must be comes out to be a straight line. And second thing, उसका जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा? H by E. और उसका जो x इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा? F naught. Is that clear, friends? Is it okay? Yes, sir. चलो, फॉर फोटोन अभी जो है ना, फॉर वन फोटोन, एक फोटोन की बात करते हैं तो उसका एनर्जी क्या होगा? HF. एनर्जी को E मान लेते हैं तो कैन आई से इट इज इक्वल्स टू HF, और वी कैन आल्सो से इट इज hc by lambda. Am I right, friends? Yes, sir. इट्स मोमेंटम. याद है किसी को? सर बोलो. सर वहाँ पर आपने एक्स इंटरसेप्ट में F0 लिखा है कि F ना खाली क्या लिख रहा है? F नॉट है। बस तो वही है ना, F नॉट ही होगा ना, एक्स इंटरसेप्ट. तो सर आपने तो ग्राफ V नॉट ने F का बनाया है। कहाँ? ये एक्स इंटरसेप्ट की बात है. एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो ये जो वी नॉट वर्सेस एफ का जो ग्राफ होता है ना, ये जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है. तो ये जो एक्स एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो हो जाएगा आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. दैट इज कॉल्ड द एक्स इंटरसेप्ट. ओके. यस सर। रेस्ट मास ऑफ फोटोन किसी को पता है? 0. 0। And mass of the photon, if you remember, it is equals to hf by c square, if you remember. So that is the mass of photon. चलो ये समझ में आया भैया? This is all for one photon. Is it okay?
डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। वैसे ये टॉपिक मैंने है ना आपको अभी सिखाया नहीं है, बट आई थिंक यू ऑलरेडी हैड लर्नड इन द केमिस्ट्री, एम आई राइट फ्रेंड्स? इज इट ओके? केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो लैम्बडा इज इक्वल टू h/p। ये किसका वेवलेंथ? अगर कोई पार्टिकल को हम एज अ वेव कंसिडर करते हैं, देखो ये द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर एंड पार्टिकल। तो पार्टिकल मैटर फॉर्म, मैटर जो है ना, ड्यूअल नेचर ऑफ द पार्टिकल, ड्यूअल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड मैटर। मैटर जो होती है वो पार्टिकल नेचर में तो होती है, फिर अगर कोई मैटर पार्टिकल को वेव फॉर्म में कंसिडर करते हैं तो उसका ये वेवलेंथ है। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल कंसिडर्ड इन द वेव नेचर। तो अगर वेव नेचर में है तो वेवलेंथ होना चाहिए ना। So this is the equation of the de Broglie wavelength. But as you know, kinetic energy can also be written as a half mv square, that is p square by 2m. तो इसका मतलब ऐसा होगा, इसका मतलब ऐसा होगा कि p इज इक्वल्स टू क्या होगा? p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कहना इसे 2m के, तो p इज इक्वल्स टू √2m के लिख सकते हैं हम फ्रेंड्स। यस और नो? Yes, sir. सो h यस सर। p के बदले √2m के हो जाएगा। अब आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई q चार्ज को v वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेट किया है, अगर कोई q चार्ज को v वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेट किया है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो q ही होता है। तो फिर ये अगर फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा √2m, k के बदले हो जाएगा q इंटू वी। अगर इलेक्ट्रॉन है तो ev हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के थ्योरी में दिखा था ना, ev भी था। और आपको पता है कि कोई गैस मोलेक्यूल है तो गैस मोलेक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो 3/2 kBt होता है। तो यहाँ पे k के बदले 3/2 kBt लिखो। k के बदले अगर 3/2 kBt लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m बोल्ट्जमैन कांस्टेंट kb इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। ये हो जाएगा आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए, जिसका जहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट है ऐसा हम इसको वहां पे यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. If n photons incident, तो what is the total energy? एक फोटोन का HF है तो n फोटोन का हो जाएगा NHF। पावर इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि पावर का जो फॉर्मूला है ना, पावर का जो फॉर्मूला है वो एनर्जी पर टाइम होता है। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो एनर्जी पर टाइम होता है, दैट इज इक्वल्स टू NHF अपॉन टाइम। एंड इंटेंसिटी, दिस इज अ पावर। एंड इंटेंसिटी आपको पता होगा कि इंटेंसिटी क्या होता है कि बोले एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये हो जाएगा आपका NHF पर ए पर टाइम। सो एक n फोटोन अगर इंसिडेंट हो रहे हैं तो। एंड लास्ट थिंग फ्रेंड्स, अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि फोटोन का, आपको लैम्बडा दिया हुआ है, मान लो कि आपको लैम्बडा दिया हुआ है, तो अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि फोटोन का एनर्जी क्या है, तो अगर आपको वेवलेंथ दिया हुआ है और एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा हुआ है तो आपको क्या करना है भैया? आपको hc/λ करना है। अगर आपको फोटोन का एनर्जी पूछा हुआ है तो hc/λ, मतलब मैं ऐसा बताना कि ट्राई कर रहा हूँ कि आपका जो एनर्जी होता है ना वो दैट एनर्जी ऑफ द फोटोन प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। बट अगर कोई और पार्टिकल है, for any other particle apart from the photon, any other particle, कोई भी पार्टिकल, फोटोन के सिवा दूसरा कोई भी पार्टिकल है और उसका काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी पूछा हुआ है और लैम्बडा दिया हुआ है आपका, तो अगर लैम्बडा आपको दिया हुआ है तो लैम्बडा मतलब कोई भी पार्टिकल का लैम्बडा मतलब उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा। तो कोई भी पार्टिकल का लैम्बडा मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो अगर लैम्बडा दिया है एंड एनर्जी फाइंड करना है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा आपका p²/2m। बट p होता है ना जो h/λ होता है, बिकॉज लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, तो p इक्वल टू h/λ।
तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा h²/2m²। सो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको सोचना है कि आपको क्या फाइंड करना है। क्या आपको फोटोन का एनर्जी फाइंड करना है, या आपको फोटोन का एनर्जी फाइंड करना है, या आपको कोई पार्टिकल का एनर्जी फाइंड करना है? वो सोचना, वो देखना है कि क्या पूछा है। अगर फोटोन है तो यू कैन अप्लाई hc/λ और hf, but for any other particle, if you want to find the energy or kinetic energy, you cannot apply the hc/λ. You have to apply the formula p²/2m, that is h²/2m². So that is to be noted. Is that clear, friends? देख मतलब एनर्जी है तो मतलब ऐसे देख के hf अप्लाई नहीं करना है, आपको देखना है कि क्या पूछा हुआ है। Is that clear? Is it understood, friend? तो ये चैप्टर के Yes, sir. हाँ, ये चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे आपको एक बार मेमोराइज करा दिया, सिखा दिया, यहाँ पे मैंने बता दिया। अब 1 बाय 1 सारे न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो, ये सब पता चला अभी तक का? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा। अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में मोनोक्रोमेटिक light of a frequency okay क्वेश्चन नंबर 1 मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है और पावर भी दिया हुआ है। सो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकंड इन द एवरेज आर एमिटेड इन द सोर्स फ्रॉम द सोर्स। चलो, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो एनर्जी ऑफ द फोटोन फाइंड करना है। तो मुझे ये बताओ कि एनर्जी ऑफ द फोटोन, आप फटाफट बोलो, आपको बोलना है एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या आएगा? hf HF. Whether you had provided the frequency of the incident radiation, yes we had. H का वैल्यू आपको पता है 6.625 10⁻⁴ होता है। तो ये जो आपका आंसर आएगा वो जूल में आएगा। बट जनरली ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन या फोटोन के साथ एसोसिएटेड जो एनर्जी होता है ना, उसको हम किसके यूनिट पे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो आपको क्या करना है कि जूल का जो भी आपका आंसर आएगा उसको क्या करना है, आपको 1.6 10⁻⁹ से डिवाइड करना है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। Electron volt में. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ये करोगे ना? yes sir दूसरा क्वेश्चन क्या है? आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड फाइंड करना है और पावर आपको दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। सपोज एन नंबर ऑफ फोटोन इज इंसिडेंट, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ NHF/T? ये HF को तो मैं E भी बोल सकता हूँ। HF को तो मैं एक फोटोन का एनर्जी E भी बोल सकता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, मतलब वही वो n/t फाइंड करना है। तो n/t को सब जगह इक्वेशन बना दो, तो आपका क्या हो जाएगा? पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकंड, दैट इज n/t इज इक्वल टू पावर अपॉन एनर्जी ऑफ द वन फोटोन। अब पावर का वैल्यू तो आपको पता है 2 × 10⁻³ वॉट है, और एनर्जी ऑफ द वन फोटोन अभी हमने डिस्कस किया है। तो ये जो भी यहाँ पे आंसर आएगा जूल वाला, तो ये आंसर आपको यहाँ पे लिखना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकंड मिल जाएगा। चलो, क्या ये चीज समझ में आया भैया? करवाने की जरूरत है ये? इज इट अंडरस्टूड? यस और नो? yes ओके, yes sir चलो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा देखो तो। अ वर्क फंक्शन ऑफ अ cesium is a 2.14 electron volt. Number 1, find the threshold frequency of the cesium. And number 2, the wavelength of the incident light if photocurrent is brought to zero by stopping potential 0.6 volt. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि आपको सीजियम का वर्क फंक्शन दिया हुआ है एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना है। तो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द वर्क फंक्शन? यस वी हैव। बताओ भैया कौन सा रिलेशन है? बोलो। Phi equals to HF. phi नॉट इज इक्वल्स टू HF नॉट। अब ये जो वर्क फंक्शन है ना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो उसको सबसे पहले क्या करना है,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है ना, तो आपको 1.6 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना है। H का वैल्यू 6.625 10⁻34 है, और एफ नॉट आपको फाइंड करना है। जस्ट मेक द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन एफ नॉट। एफ नॉट को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको स्टॉप, देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ब्रॉट टू जीरो का मतलब क्या हुआ? ये 0.6 आपको क्या दिया हुआ है? Potential. स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो EV0 इज इक्वल टू HF माइनस 5 था। इज इट क्लियर? बट यहाँ पे क्या करना है, वी डोंट वांट टू फाइंड द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, वी वांट्स टू फाइंड द इंसिडेंट वेवलेंथ। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, HC बाई लैम्बडा करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, HC बाई लैम्बडा को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दो, तो क्या हो जाएगा भैया? EV0 बाई 5 माइनस 5 हो जाएगा? नहीं, +5 हो जाएगा। हो जाएगा? यस और नो? अरे हाँ के ना तो बोल दो। यस सर। तो अब आपके पास H का वैल्यू है 6.625 10⁻31 34। C का वैल्यू 3 × 10⁸ है। E का वैल्यू 1.6 10⁻19 कूलम। स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 है, एंड वर्क फंक्शन भी आपके पास है। दो इट इज इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द जूल। जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 1.6 10⁻19 से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये पूरा सिंप्लीफाई करो, सब कुछ है आपके पास, आपको लैम्बडा फाइंड करना है। कैन यू डू इट योरसेल्फ? चलेगा फ्रेंड्स? Yes, sir. इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। यस। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? रीड करो तो। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन इज अबाउट द 390 नैनोमीटर। तो मतलब आपको ऐसा दिया हुआ है कि आपका जो वेवलेंथ है ना रेडिएशन का, वो 390 है। एंड अच्छा, वायोलेट का ये है, फिर वेवलेंथ ऑफ येलो ग्रीन इज दिस मच, एंड फॉर द रेडिश दिस मच। तो आपको तीन अलग अलग कलर्स के वेवलेंथ, मतलब λ1 λ2 λ3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि विच आर एनर्जीज ऑफ द फोटोन्स एट द वायोलेट, येलो ग्रीन एंड रेड। तो सबका, सबसे पहले सबका तो है ना एनर्जी फाइंड करना है। आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, एनर्जी फाइंड करना है। तो फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भैया? HF, एंड HF इज इक्वल टू, कैन आई से HC बाई λ1। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला में अगर आप HC बाई λ1 करोगे, H का वैल्यू फिक्स्ड है 6.625 10⁻31 34। C का वैल्यू फिक्स्ड है 3 × 10⁸ λ1 जो दिया हुआ है वो 390 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। मेक इट सिंप्लीफाइड, यू गॉट द आंसर इन द जूल, एंड वापस से उसको 1.6 10⁻19 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। दूसरा जो है ना वो ये है कि HF2, तो HC बाई λ2, वापस से आपको ये मिल जाएगा। एंड तीसरा वाला है जो वो HF3, मतलब HC बाई λ3। तो ये सबका आपको एनर्जी मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलो अब ऐसा दिया हुआ है कि सीजियम का जो वर्क फंक्शन है ना वो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पोटेशियम का जो वर्क फंक्शन है वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एंड सोडियम का जो वर्क फंक्शन है ना वो 2.75 है। ऐसा दिया हुआ है। तो अब ये पूछा है कि विच फोटोन इज मेक फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम विच मेटल। तो मुझे पता नहीं, मैं जस्ट रैंडमली लिख रहा हूँ कि E1 का जो वैल्यू है ना वो मान लो कि E1 का जो वैल्यू है वो मान लो कि 3.76 है। पता नहीं मुझे क्या आ रहा है, बट मान लो कि ये 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। मान लो कि ये जो है ना वो 2.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ऐसा मान लो। और 2.35 आ रहा है, ऐसा मान लो। चलो
और ये 1.86 आ रहा है, कुछ पता नहीं मुझे। तो मुझे ये बताओ कि ये जो फर्स्ट फोटोन है वो किस मेटल में से एमिशन करवा सकता है? फर्स्ट जो फोटोन है उसका जो एनर्जी है ना वो तीनों मेटल के से वर्क फंक्शन से ज्यादा है। मतलब क्या होगा कि फर्स्ट फोटोन के द्वारा किसमें से के एमिशन हो सकता है, कौन कौन से एटम मेटल में से एमिशन हो सकता है फर्स्ट फोटोन? तीनों तीन मेटल में से। तीन मेटल में से। अब दूसरा वाला जो है उसका 3.7 3 पॉइंट दूसरा वाला सपोज के फोटोन का एनर्जी मान लो, मैंने पता नहीं मुझे, मैंने एरर लिख लिया, वो मान लो कि 2.35 है, तो वो किस में से एमिशन कर पाएगा? फर्स्ट टू। First two. फर्स्ट। एंड जो थर्ड है ना उसकी एनर्जी बहुत ही कम है, तो वो किस में से एमिशन कर पाएगा? किसी में से भी नहीं। तो क्या ये चीज कर सकते हो आप इसके कंपैरिजन के द्वारा, कौन किस में से एमिशन कर पाएगा वो पता चल जाएगा आपको? इज इट ओके? यस सर, यस सर। Yes, ये sir. ना कराओ तो चलेगा ना फ्रेंड्स? देखो मैंने जो वैल्यूज लिखा था ना वो ऑलमोस्ट सही था। फर्स्ट वन कैन मेक द एमिशन फ्रॉम ऑल द थ्री मेटल। सेकंड जो है ना उसमें वो 2.20 में, मतलब वो दो मेटल में से करा सकता है, और थर्ड वन जो है ना वो किसी में से नहीं करा सकता। इज दैट क्लियर? इज इट ओके? चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्या क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है कि भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको फाइंड करना है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के। एक जो है ना उसका वेलोसिटी आपको दिया हुआ है और उसका मास भी दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता होगा कि 9.31 9.1 10⁻³ होता है। तो फ्रेंड्स आपको इलेक्ट्रॉन का मास पता है, आपको इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी पता है, दिया हुआ है, तो क्या आप लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी कर सकते हो, डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो भैया? कर पाओगे फ्रेंड्स? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इज दैट क्लियर? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का हो गया, और दूसरा वाला कोई बॉल है तो उसका भी मास आपको दिया हुआ है, उसका भी वेलोसिटी दिया हुआ है। तो क्या ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा के आपका इंसल्ट करूँ कि चलेगा? क्या ये करवाने की जरूरत है? अरे कुछ तो बोलो। इज दैट क्लियर? यस सर। क्या ये क्वेश्चन मैं आपको खुद दे सकता हूँ, आप कुछ ट्राई कर सकते हो ये क्वेश्चन? Yes, sir. ओके। यस सर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आंसर को ध्यान से देखो, तो मुझे बताओ कि ये जो आंसर है वो क्या आ रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो क्या आ रहा है, देखो तो जरा। इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना वो कुछ आपको 1.0.1347 नैनोमीटर मिल रहा है, मतलब नैनोमीटर मतलब कुछ कंसिडरेबल 10⁻⁹ मीटर। बट जो 150 ग्राम का जो बॉल है ना 150 ग्राम उसका जो देखो आप डी ब्रोगली वेवलेंथ आपका 10⁻34 मीटर मिल रहा है। मतलब ये जो हैवियर ऑब्जेक्ट होते हैं ना, हैवियर जैसे बॉल, तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑलमोस्ट जीरो है, 10⁻34 मीटर, मतलब ऑलमोस्ट जीरो। मतलब क्या हुआ कि हैवियर ऑब्जेक्ट का जो वेव नेचर है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज उसका वेव नेचर का जो वेवलेंथ होता है ना वो बहुत ही कम होता है। सो जनरली lighter particles like a electron, proton, etc., we can have the experience of the wave nature of a lighter particle because their wavelengths are something considerable. But for the heavier particles, their wavelengths are very much small. So we cannot experience the wave nature of the heavier objects. Is that clear, friends? तो heavier यस सर। जैसे मैं हो, तुम हो, बॉल है, तो ये हैवियर ऑब्जेक्ट का वेव नेचर आप कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, बिकॉज उसका वेवलेंथ कुछ है ही नहीं, उसका वेवलेंथ आपको निग्लिजिबली स्मॉल मिलेगा। सो इट विल नॉट इसका दूसरा मीनिंग ऐसा हुआ कि हैवियर ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो एज अ वेव नेचर उसका बिहेवियर बहुत ही कम रहता है। इज इट क्लियर?
यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में? अन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो किसका डी ब्रोगली वेवलेंथ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा, तीन पार्टिकल है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन। तो किसका डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम रहेगा? एनर्जी सबका सेम है। तो फ्रेंड्स हमको पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है भैया? H अपॉन पी, H अपॉन √2m k। एम आई राइट फ्रेंड्स? देखो काइनेटिक एनर्जी का सबका सेम ही है, H वैसे भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो फिर लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? 1 अपॉन रूट मास। इज दैट क्लियर? अरे हाँ के ना तो बोलो। तो जिसका मास कम रहेगा उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहेगा। तो मुझे बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसको अल्फा बोलते हैं, और एक प्रोटॉन है। तो इन तीनों में से सबसे कम मास किसका है? किसका मास सबसे कम है? ये तीन पार्टिकल में से मास किसका सबसे कम है? बताएगा मुझे? ये तीन पार्टिकल में से किसका मास सबसे कम है? इलेक्ट्रॉन, अल्फा, प्रोटॉन, बताओ। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम रहेगा तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहेगा। और किसका मास सबसे ज्यादा है? मास किसका सबसे ज्यादा है? अल्फा। तो अल्फा का डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम रहेगा। इज दैट क्लियर? सो व्हिच इज हैविंग अ शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ रहेगा आपका? अल्फा। अल्फा। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 6। A particle is moving in the 3 times as fast as an electron. इलेक्ट्रॉन से उसका वेलोसिटी 3 टाइम्स ज्यादा है। So the ratio of the de Broglie wavelength of the particle to the electron, आपको de Broglie wavelength का रेशियो भी दिया हुआ है। तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन, वो हमको 1.81 10⁻⁻⁴ दिया हुआ है। बट जो लैम्डा होता है ना, वो आपका पता होता है कि h/mv होता है। तो h/mv ऑफ द पार्टिकल अपॉन h/mv अपॉन इलेक्ट्रॉन, नीचे जो है वो इलेक्ट्रॉन का है, वो दिया हुआ है। ये एच कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, m डैश v डैश इज इक्वल्स टू 1.81 10⁻⁻31। अब फ्रेंड्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 3 टाइम्स देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो वेलोसिटी पार्टिकल का है ना वो इलेक्ट्रॉन से 3 टाइम्स है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ पार्टिकल तो मुझे फाइंड करना है, एंड वेलोसिटी जो है ना वो 3v है। तो आपको m डैश फाइंड करना है, तो जस्ट मेक द m डैश सब जो इक्वेशन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही होता है कि 9.1 10⁻⁻31 होता है। तो m डैश को सब जगह इक्वेशन बना दो तो आपको क्या मिल जाएगा? पार्टिकल का मास मिल जाएगा, वही फाइंड करना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? आया यस। समझ में? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या है भैया कि व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय द 100 वोल्ट पोटेंशियल। 100 वोल्ट पोटेंशियल के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा? तो आपको क्या करना है, पहले प्रूव करना है इक्वेशन। लगेगा ना कि 3 मार्क्स में क्वेश्चन किया। तो h/p, और प्रूव करना है कि भाई काइनेटिक एनर्जी होता है वो p²/2m होता है। तो p² जो होता है वो 2m k होता है, तो p जो होता है वो √2m k होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि h/√2m k, but kinetic energy of a charged particle which is accelerated with the potential v can be given by qe। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ev। बस अब तो सारे वैल्यूज हमारे पास है। h का वैल्यू 6.625 10⁻⁻34,
Mass of electron 9.1 10 raised to minus 31, charge of electron 1% 10 raised to minus 19, and voltage आपको दिया हुआ 100 volt. So put all these values and get the answer. Is that clear? Yes, sir. So all the illustrations are completed. सारे illustrations यहाँ पे खत्म हो गए इस चैप्टर के. अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. चलो, क्वेश्चन नंबर 1. Are you able to see the question? Exercise question number 1. Yes, sir. थोड़ा इंटरेक्शन करते रहिएगा फ्रेंड्स, तो थोड़ा मजा रहेगा लेक्चर में. देखो, हमारे चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक चैप्टर था. तो उस चैप्टर में किसी को याद है सोर्स ऑफ द एक्सरे का सोर्स किसी को पता है? वहां पे अलग अलग रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सोर्सेस दिए थे. तो किसी को एक्सरे का सोर्स याद है? पता है किसी को? बीटा इलेक्ट्रॉन. नहीं नहीं नहीं, एक्सरे का सोर्स ये है कि व्हेन अ वेरी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज कोलाइड विद द मेटल, energetic electron when collide with the metal, at that time electron loses the energy and X-ray produces. So energetic, the origin of the X-ray is a collision of the energetic electron with the metals. Collision of energetic electron with the metal, that was the source of X-ray. तो यहाँ पे क्या है, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा. कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका एनर्जी 30 किलोवाट है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसका काइनेटिक एनर्जी जो है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो 30 किलोवाट है. किलोवाट नहीं, ये पोटेंशियल दिया हुआ है. तो ये पोटेंशियल के द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं. तो एनर्जी गेन बाय दैट इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ईवी. अब जब ये इलेक्ट्रॉन जब मेटल के साथ कोलाइड होगा तो उसके पास जितना भी काइनेटिक एनर्जी है ना, वो फोटोन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज वो एक्सरे प्रोड्यूस करेगा. एंड अगर ऐसा कोलिजन हो रहा है कि जिसके द्वारा जितना भी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का वो पूरा एक साथ कन्वर्ट हो जाए, तो फिर जो फोटोन प्रोड्यूस होगा उसका एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, बिकॉज पूरा यूटिलाइज हो गया. फोटोन, इलेक्ट्रॉन का जितना भी काइनेटिक एनर्जी था वो 100% यूटिलाइज हो गया फोटोन प्रोड्यूस करने में, एक्सरे प्रोड्यूस करने में. तो एट दैट टाइम द एनर्जी ऑफ द फोटोन और फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन बिकम्स मैक्सिमम. तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सेलरेट किया, सो वो पोटेंशियल के द्वारा उसको काइनेटिक एनर्जी मिला, और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जेशन हो गया HF में, फोटोन में कन्वर्ट हो गया. बट 100% यूटिलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगा वो मैक्सिमम होगा. यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगा वो मैक्सिमम होगा, और वही तो मुझे फाइंड करना है. तो E का वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁹. वोल्टेज आपको 30 किलोवाट दिया हुआ है. H का वैल्यू आपको पता है. तो आपको ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, नंबर 1. और दूसरी बात, आपको पता है कि एफ लैम्बडा इज इक्वल टू सी होता है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई एफ होता है. तो इसका मतलब कि अगर लैम्बडा आपको, अगर आपका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो आपका लैम्बडा मिनिमम रहेगा. तो अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो लैम्बडा मिनिमम होगा. तो एफ मैक्सिमम तो लैम्बडा. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये दूसरा क्वेश्चन मिनिमम वेवलेंथ भी फाइंड करना था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करना था. इज इट ओके फ्रेंड्स? सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फोटोन में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फोटोन में नहीं, इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन अपना खुद का पूरा जो एनर्जी है वो लॉस करेगा, और वो एनर्जी जो है ना उसके द्वारा रेडिएशन प्रोड्यूस होगा, और वो जो रेडिएशन है वो फोटोन प्रोड्यूस होगा. इलेक्ट्रॉन कभी फोटोन में कन्वर्ट नहीं हो सकता. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, फोटोन फोटोन है. बट इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी जो है ना, उसका यूटिलाइजेशन लाइट एनर्जी में हो रहा है, रेडिएशन में हो रहा है. तो रेडिएशन प्रोड्यूस होना मतलब फोटोन प्रोड्यूस होना. इज दैट क्लियर? यस सर. अंडरस्टूड? यस सर. So second question, a work function of a metal, cesium metal is given.
एंड इंसिडेंट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमको दिया हुआ है, सीजियम का वर्क फंक्शन दिया हुआ है, इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी भी हमको दिया हुआ है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, नंबर 1। तो फ्रेंड्स क्या हमने ये सीखा है कि kmax इज इक्वल टू hf माइनस 5? यस। यस सर। अब h का वैल्यू जो है ना वो 6.625 10⁻⁻34 है। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻14। वर्क फंक्शन 2.14 नहीं चलेगा, उसको 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको करना पड़ेगा जूल में कन्वर्ट। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपको kmax मिल जाएगा। बट ये kmax का जो आंसर आएगा ना वो जूल में आएगा वापस से, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दोगे तो वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो उसका मान लो कि आंसर 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। चलो ये kmax मिल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या फ्रेंड्स आपको पता है कि kmax इज इक्वल टू ईवी नॉट होता है। अब मान लो कि kmax का वैल्यू हमको 3.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, तो इसको EV0 के साथ कंपेयर कर दो तो ये 1.6 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका हो जाएगा 1.345 वोल्ट। तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मिल गया। एंड थर्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटोन इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम स्पीड भी फाइंड करना है, तो कोई बात नहीं, आपको kmax पता चल गया ना, तो kmax इज इक्वल टू हाफ Vmax स्क्वायर यूज कर लो। आपका kmax का जो जूल का आंसर है ना, जूल का आंसर वो आपको यहाँ पे लिखना है, जूल वाला आंसर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही होता है, तो kmax आपको मिला हुआ है, तो क्या आपको Vmax मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, यस सर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स। यस सर। Yes, sir. ओके चलो, so question number 1 and 2 is completed. Let's come to the question number 3 4 5 6। समझ में आ रहा है ना भैया। हाँ सर। देखो थर्ड क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको। कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, तो आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो kmax इज इक्वल टू EV0, करो EV0 दैट्स इट। और इसको इलेक्ट्रॉन जूल में मिला और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपको E से डिवाइड करना पड़ेगा। इज इट ओके फ्रेंड्स। यस। तो मजाक था। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो उसका क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ समथिंग 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 इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉन बाय हीलियम नियॉन लेजर। मतलब इंसिडेंट लाइट का आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, अब पावर भी दिया हुआ है आपको, दूसरा पावर भी दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। तो आपको एनर्जी मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, चलो एक फोटोन का एनर्जी एंड मोमेंटम फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स एनर्जी का फॉर्मूला बोलो फोटोन का। hc/λ। हाँ HF, बट आपको लैम्बडा दिया हुआ है तो आपको hc/λ करना पड़ेगा। इज इट ओके फ्रेंड्स। ये जूल में आंसर आएगा, उसको 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर, दैट इज एनर्जी। और मुझे एक और चीज फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है मुझे, मोमेंटम। तो मोमेंटम इज इक्वल टू HF/c। तो ये अभी जो एनर्जी मिला ना आपको जूल वाला, तो उसके डिवाइड बाय c कर दो, तो आपको जूल वाला जो भी आपको एनर्जी मिला तो उसको c से डिवाइड कर दो, तो आपको मोमेंटम भी मिल जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया, हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड मुझे फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि पावर क्या होता है, पावर बोले टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम। इफ n नंबर ऑफ फोटोन्स आर इंसिडेंट देन इट इज NHF अपॉन टाइम। एक फोटोन का एनर्जी मैंने E कंसिडरेशन किया हुआ है तो NE/T। अब मुझे नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम फाइंड करना है, तो पावर डिवाइड बाय एक फोटोन का एनर्जी। तो एक फोटोन का एनर्जी हमने जूल में अभी डिस्कस किया, पावर भी दिया हुआ है हमको। तो क्या आप नंबर ऑफ फोटोन्स पर इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हो भैया। यस सर। इज दैट क्लियर। यस। चलो नंबर 3, हाउ फास्ट डज अ हाइड्रोजन एटम
have to travel in order to have the same momentum as that of the photon. तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि भाई फोटोन का मोमेंटम जो हमने फाइंड किया ना, उसी मोमेंटम हाइड्रोजन का चाहिए मुझे। तो फोटोन का मोमेंटम तो हमको पता है, ये रहा हमारे पास, ये रहा, ये फोटोन का मोमेंटम तो है हमारे पास, तो ये तो है। तो हाइड्रोजन का मोमेंटम कहना है इसे मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम इनटू द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम मतलब क्या पता है आपको? प्रोटॉन, 1h1। तो मास ऑफ द प्रोटॉन पता ही है हमको, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं आपको, प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 10⁻27 kg होता है, 1.67 10⁻27 kg। फोटोन का मोमेंटम पता है, हाइड्रोजन का मास पता है, तो वेलोसिटी मिल जाएगा आपको। करवाने की जरूरत है भैया? तो सर इज इट डन फ्रेंड्स? इज इट ओके फ्रेंड्स? आया बात समझ में? यस सर, चलो यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखा है कि एनर्जी फ्लक्स ऑफ, देखो एनर्जी फ्लक्स का मतलब, एनर्जी फ्लक्स देखो यहाँ पे ऑलवेज याद रखना कि एनर्जी फ्लक्स का मतलब इंटेंसिटी होता है। याद रखना कि एनर्जी फ्लक्स का मतलब होता है इंटेंसिटी। तो हमको इंटेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.388 10⁻³ watt per meter square. How many photons per square meter are incident on the earth per second? तो मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फाइंड करना है। आपको पता है फ्रेंड्स इंटेंसिटी क्या होता है, तो बोले एनर्जी पर एरिया पर टाइम। अब एनर्जी इज इक्वल टू NHF, एक फोटोन का अगर एनर्जी HF है तो n फोटोन्स अगर है तो NHF होता है, तो NHF/80। तो अगर हमको अच्छा लैम्बडा दिया हुआ है, तो लैम्बडा दिया हुआ है तो NHF के बदले C/λ लिखना पड़ेगा अपॉन 80। तो आप नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया अगर फाइंड करोगे तो ये आपका हो जाएगा I λ/hc हो जाएगा। I λ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आपको फाइंड करना है। तो I λ/hc, I का वैल्यू हमारे पास है 1.388 10⁻³ लैम्बडा भी हमारे पास है 550 नैनोमीटर। H का वैल्यू एंड C का वैल्यू हमारे पास है, H का वैल्यू 6.625 10⁻34 C3 × 10⁻8। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? करवाने की जरूरत है, अभी करोगे इसका कैलकुलेशन? यस सर। 6th क्वेश्चन, in an experiment, question number 6, in an experiment of the photoelectric effect, the cutoff voltage, चलो cutoff voltage हमको दिया हुआ है, cutoff voltage versus frequency of incident light found to be, क्या दिया हुआ है? स्लोप, अच्छा स्लोप दिया हुआ है, तो स्लोप हमको दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट, तो लिखना है यहाँ पे पहले तो आपको पूरा इक्वेशन लिखना है फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो क्या करना है, ये 3 मार्क्स में सॉल्व करने के लिए आपको पूरा लिखना है। As we know, EV0 is equals to HF minus phi. That's why V0 is equals to H/EF minus phi by E. Now comparing this equation is a y equals to mx plus c plus or minus c. So we come to know that the slope must be equals to H/E. बस अब आपको क्या करना है, अब स्लोप का वैल्यू प्लेस करना है। स्लोप आपको दिया हुआ है और इसको ई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? H मिल जाएगा, वही फाइंड करना है। देखो वही फाइंड करना है, बोगस। तो बट वो क्यों फाइंड कर? अरे पूछा तो कर देते हैं, उसमें क्या है? नहीं वो क्यों फाइंड किया वो आप भूल गए, मैंने बताया ना कल आपको। ये काम किसने किया था? मिलिकन ने किया था। मिलिकन was trying to prove the Einstein's explanation wrong, but fortunately he actually give the theoretical proof for that. Is that clear? तो मतलब प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू तो हमें याद ही है, तो फिर नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लैंक कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, तो मिलिकन ने क्या किया था कि वो देखना चाहता था कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन वाकई में प्लैंक कांस्टेंट आता है।
तो उसका ऐसा मानना था कि नहीं आना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली आ गया। ओके, ओके सर। ये क्वेश्चन इसलिए है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट एक्सप्लेनेशन, स्लोप को अगर ई से मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू है ना प्लैंक कांस्टेंट जितना आना चाहिए। तो अब हम उसको वाकई में करते हैं कि क्या वो वाकई में प्लैंक कांस्टेंट आ रहा है। तो यस, वी फाउंड द सिमिलर आंसर 6.6 10⁻34, तो वही मिला। दैट इज इंडिकेटिंग दैट इट इज अ प्लैंक कांस्टेंट। इज क्लियर? देखो यहाँ पे यस से क्यों स्टार्ट किया, कभी ये 2-3 न्यूमेरिकल में ना गलत हिसाब से स्टार्ट किया है। डोंट स्टार्ट विद दिस। इससे क्यों स्टार्ट करते हो आप क्यों ऐसा स्टार्ट करो? सिंपल, आपके पास सिंपली तो है ये EV0 इज इक्वल टू HF-5 से स्टार्ट करो। ये ऐसा गंदा इक्वेशन क्यों लिखते हो आप? यहाँ से स्टार्ट करो। तो 2-3 क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ से ही स्टार्ट करना चाहिए ना, सीधा है तो सीधा, मतलब ये इक्वेशन से ही स्टार्ट करो। क्या ज़रूरत है आपको ये अकड़म बकड़म करने की? तो ये पहले 2 इक्वेशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन। ये डायरेक्टली आप यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं करते? ये आपको पता ही है ना, EV0 इज इक्वल टू HF-5। इज दैट क्लियर? यस सर। जरूरत नहीं इसका कोई। ओके, यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर। 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड्स? यस सर। क्या देखो, 100 वॉट बल्ब का पावर 100 वॉट है। एंड आपको वहाँ पे अगर देखो तो वेवलेंथ भी दिया हुआ है कहीं पे। तो आपको वेवलेंथ भी दिया हुआ है, पावर पे वेवलेंथ दिया हुआ है आपको यहाँ पे, और पावर भी दिया हुआ है। व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड विद द सोडियम लाइट? तो सबसे पहले तो आपको फोटोन का एनर्जी फाइंड करना है। तो पता है हमको कि फोटोन का एनर्जी क्या होता है भैया? लैम्डा। HF इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा। अब लैम्डा आपको दिया हुआ है, HC तो कर सकते हो आप। चलो ये आपको मिल जाएगा, जूल में मिलेगा वैसे, तो उसको कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कर पाओगे ना, उसमें क्या है। चलो मिल गया। दूसरा क्या है? एट व्हाट रेट, रेट का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर टाइम, व्हाट रेट का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम आपको फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर टाइम आपको फाइंड करना है। तो मिल सकता है ना, पावर है आपके पास, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। इफ n नंबर ऑफ फोटॉन्स आर इंसिडेंट, देन नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम आपको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा आपका NE/T। एक फोटोन की एनर्जी को मैंने E कंसीडर किया हुआ है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम को सब जगह इक्वेशन बनाओ तो ये तीसरी बार आया, पावर अपॉन एनर्जी। माय राइट फ्रेंड्स? यस सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8-9 करते हैं, पर पहले 10th क्वेश्चन दिख रहा है तो उसको पहले कर देते हैं। 10th क्वेश्चन दिख रहा है तो उसको पहले खत्म कर देते हैं। क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, मैक्सिमम स्पीड आपको दिया हुआ है, तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। अच्छा ठीक है, तो आपको पता है कि हाफ MV मैक्स, देखो एक स्टेप लिखते हैं, के मैक्स इज इक्वल टू HF-5। क्या ये चीज आपको पता है भैया? यस और नो? यस तो हाफ MV मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू HF-HF0 लिख सकते हैं हम वर्क फंक्शन के बदले। यस तो हाफ MV मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच, ओके एक काम करते हैं, HF को सब जगह इक्वेशन बनाते हैं, HF नॉट को। तो HF नॉट इज इक्वल टू HF माइनस हाफ MV मैक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब है ना, H आपको पता है 6.625 10⁻34। F इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, Vmax आपको दिया हुआ है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन नोन टू यू। तो क्या आपको ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा? H का वैल्यू तो पता ही है आपको। इज दैट क्लियर? कराओगे चलेगा? चलेगा। दौड़ेगा? यस सर। वापस से जो फॉर्मूला लिखा ना वो गलत जगह से स्टार्ट किया है, क्यों डिफिकल्ट करते हो? सीधा तो फॉर्मूला है, तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये मत करो यार।
कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हाफ एम वी मैक्स पर इज इक्वल टू एच एफ माइनस 5 से स्टार्ट करो. ओके, डोंट डू दिस, रिमेंबर ऑन द सिंगल फॉर्मूला. तो कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? हाफ एम वी मैक्स पर इज इक्वल टू एच एफ माइनस 5. जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर, यू गेट द सेम थिंग. ओके, करोगे? यस सर. चलो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 डिस्कस करेंगे अभी. 8 and 9. Okay, come to the question number 8. सर ये सारे 3 मार्कर्स है. देखो ये चैप्टर का आपका जो गुजरात बोर्ड का वेटेज है ना, उसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे और इसमें 3 MCQ है और एक 3 मार्कर क्वेश्चन है. तो अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड ब्लूप्रिंट क्वेश्चन शुड बी ऑफ 3 मार्क्स. ओके, एक भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का इसमें से नहीं पूछने वाला है, 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है. बट जो ब्लूप्रिंट को ऐसा लिखा हुआ है ब्लूप्रिंट के अंदर कि भैया हम ब्लूप्रिंट को मार्क्स चैप्टर वाइज जो वेटेज है ना मार्क्स का, उसको चेंज नहीं करना है, बट बाकी सब आप चेंज कर सकते हो. इट इज नॉट नेसेसरी दैट आप 3 मार्क्स के MCQ ही पूछो इसमें से और 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछो, ऐसा नहीं है जरूरी. ओके, ओके. चलो क्या लिखा है भैया? द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द सर्टेन मेटल इज 3.3 10 to 4. देखो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, दोनों फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है. तो क्या करना है? प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज. कट ऑफ वोल्टेज का मतलब क्या फाइंड करना है हमको? स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो आपको पता है कि एच एफ माइनस 5, तो EV0 इज इक्वल्स टू एच एफ माइनस HF0. तो V0 इज इक्वल्स टू एच कॉमन बाई ई एफ माइनस F0. तो क्या आपको इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है? दिया हुआ है. क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है? दिया हुआ है. तो क्या एच एंड ई आपका वैल्यू पता है? ऑल द थिंग इज नोन टू यू. कैन यू फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल? इज इट ओके? यस सर. चलो क्वेश्चन नंबर 9. एक मेटल का वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है. वर्क फंक्शन जो है ना मेटल का, वो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उसके ऊपर एक एमिशन कराया, इसके ऊपर एक है ना रेडिएशन को इंसिडेंट कराया. जो रेडिएशन है ना उसका वेवलेंथ 330 नैनोमीटर है. तो क्या वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कर पाएगा? ऐसा क्वेश्चन है. विल दिस मेटल गिव द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन? ऐसा क्वेश्चन है. तो एक काम करते हैं, जो मेटल के ऊपर जो रेडिएशन इंसिडेंट कराया उसके फोटोन का एनर्जी फाइंड कर लेते हैं. HF इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा. लैम्डा आपको दिया हुआ है, HC का वैल्यू पता है और उसको वापस से 1.6 से डिवाइड भी कर लेना. तो 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड भी कर लोगे ना तो आपको ये आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा. मान लो कि ये 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है, मान लो, और वर्क फंक्शन 4.2 है. तो क्या वो सफिशिएंट है? नो सर. नो. तो फिर क्या एमिशन कर पाएगा? नो सर. बट अगर ये 5.76 आ जाए तो हो जाएगा. तो मतलब होगा कि नहीं होगा वो आपको पता चल जाएगा. इज दैट क्लियर टू यू? यस सर. दैट्स इट. करोगे ना ये? इज इट अंडरस्टूड? यस सर. कम टू सर द क्वेश्चन चैप्टर में कोई सारा न्यूमेरिकल शायद नहीं है ना. बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स है, वो एडिशनल एक्सरसाइज में, जितने भी अच्छे न्यूमेरिकल है ना वो एडिशनल एक्सरसाइज में है. उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट वो हम लास्ट में करेंगे. ओके, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है. मतलब तो वो सिलेबस में नहीं है वो वाले. हाँ, एडिशनल एक्सरसाइज में नहीं है आपके सिलेबस में वैसे, बट JEE नीट के लिए हम करेंगे उसको, हम एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं. ओके, 11 क्वेश्चन. लाइट ऑफ द वेवलेंथ. वेवलेंथ आपको दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है. आर्गन लेजर फोटो इलेक्ट्रिक व्हेन द लाइट्स इंसिडेंट इन द. अच्छा, हमको कट ऑफ वोल्टेज मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमको दिया हुआ, इंसिडेंट वेवलेंथ दिया हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ. फाइंड द वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन फाइंड करना है. तो वापस से कहां से स्टार्ट करेंगे? तो यहाँ पे हमको इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है HC बाई लैम्डा माइनस 5 और मुझे ये फ्रेंड्स वर्क फंक्शन फाइंड करना है. तो क्या करोगे आप? HC बाई लैम्डा माइनस EV0 करोगे आप. तो फ्रेंड्स H आपको पता है 6.626 10⁻⁻34. C का वैल्यू 3 × 10⁸ है. लैम्डा है आपके पास 488 नैनोमीटर. E 1.6 10⁻⁻19 एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल भी है आपके पास 0.38 वोल्ट.
तो सारा चीज आप करोगे तो आपको जूल में आंसर आएगा, लास्ट में उसको 1.6 10⁻19 से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आया बात समझ में? यस सर, यस सर। ओके, तो 8 9 10 तो वैसे भी करा दिया है, 10 तो हो गया है वैसे भी, 10 करा दिया है, 11 भी हो गया, 12 पे आ जाओ। 12 देखो, आपको कैलकुलेट द मोमेंटम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद द पोटेंशियल 56 वोल्ट। तो 56 वोल्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट हम करते हैं, तो उसका मोमेंटम भी फाइंड करना है एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ भी फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को आप क्यू चार्ज को वी वेलोसिटी के साथ, अगर वी पोटेंशियल के साथ एक्सेलरेट करते हो, तो द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय दैट चार्ज इज इक्वल टू क्यू वी। इलेक्ट्रॉन है तो ईवी, बट आपको पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला पी स्क्वायर बाई 2m होता है। तो दिस इज इंडिकेटिंग दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ev। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है, वोल्टेज आपको दिया हुआ है, तो उसके द्वारा पी स्क्वायर मिल जाएगा। इसका रूट निकाल दो आप तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, एंड वंस यू गेट द पोटेंशियल यू विल गेट द लैम्बडा एज वेल, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई p। डी ब्रोगली वेवलेंथ भी आपको मिल जाएगा। करवाने की जरूरत है भैया? नो सर। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वही क्वेश्चन वापस से है, मोमेंटम चाहिए, स्पीड चाहिए एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए। आपको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के द्वारा √2m क्या करो, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से उसको पहले जूल में कन्वर्ट कर दो। जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1.6 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो कर दो तो आपको √2m क्या करोगे तो मोमेंटम मिल जाएगा। p इक्वल्स टू mv करोगे तो वेलोसिटी भी मिल जाएगा। एक बार आपको मोमेंटम मिल जाए तो लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई p करोगे तो आपको लैम्बडा भी मिल जाएगा। क्या ये करवाने की जरूरत है? देखो तो फ्रेंड्स, नो सर। इज इट ओके? इज इट अंडरस्टूड? यस। चलो क्वेश्चन नंबर 14। The wavelength of the light from the central spectral emission of line sodium 580 nanometer, 589 nanometer. The kinetic energy, अच्छा आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये बराबर है। देखो मुझे थोड़ा सोच के बताना फ्रेंड्स। चलो आपको लैम्बडा दिया हुआ है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, एक बार इलेक्ट्रॉन का, दूसरी बार न्यूट्रॉन का। चलो मुझे बताओ क्या करना चाहिए। लैम्बडा दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है एनर्जी? तो क्या करना चाहिए? ईवी। गंदी बात, गंदी बात। मैंने पहले ही समझा दिया आपको कि देखना है आपको कि क्या दिया है। अरे भैया फोटोन दिया है क्या आपको? फोटोन लिखा है क्या? नहीं सर। फोटोन नहीं है भैया। तो हाउ कैन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला? यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, एंड p जो होता है वो h बाई लैम्बडा होता है, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स h स्क्वायर बाई 2m लैम्बडा स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। इज दैट क्लियर? अब अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास ले लो, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का मास ले लो, बाकी लैम्बडा तो दोनों का सेम ही लेना है, आपको जो दिया है वो। इज दैट क्लियर? आया बात समझ में? यस सर। अगर फोटोन होता तो हम कहते हैं कि भाई hc बाई लैम्बडा। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 कराने की जरूरत है। अलग अलग 3 पार्टिकल्स है, सबके मास दिए है, सबके वेलोसिटी दिए है। मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, और आपको लैम्बडा फाइंड करना है। सबका मास दिया है, सबका वेलोसिटी दिया हुआ है, सबका लैम्बडा फाइंड करना है। तो क्या करोगे आप? h बाई mv ही करना है सबके लिए, चलेगा?
Yes, sir. Yes, sir. Question number 16. An electron and proton each have a wavelength of 1 millimeter nanometer. तो इलेक्ट्रॉन की बात है, प्रोटॉन की बात, फोटोन की बात है, इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है, तो मोमेंटम फाइंड करना है। देखो मोमेंटम तो दोनों का सेम ही होगा, चाहे आप इलेक्ट्रॉन ले लो या फोटोन ले लो, दोनों का मोमेंटम सेम ही रहेगा, बिकॉज मोमेंटम इज इक्वल टू h by लैम्बडा इज वैलिड फॉर बोथ द केसेस। तो मोमेंटम सबका सेम रहेगा, बट एनर्जी अलग अलग है ना भैया। फोटोन का एनर्जी अगर फाइंड करते हो तो क्या करना पड़ेगा, hc by लैम्बडा, एंड काइनेटिक एनर्जी अगर फाइंड करते हो तो अभी मैंने बताया आपको क्या करना पड़ेगा, h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्बडा स्क्वायर। इज दैट क्लियर? Yes. फोटोन के लिए hc, यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे उसको क्लियरली हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में। इज दैट क्लियर? वो एनर्जी का क्लियरली यहाँ पे Yes. बाइफर्केशन हो गया। इज दैट क्लियर? तो फोटोन है तो hc बाय लैम्बडा करो, इलेक्ट्रॉन है तो ये p स्क्वायर बाय 2m करो, वेयर p इज इक्वल टू h बाय लैम्बडा। इज दैट क्लियर? चलो Yes. सेकंड क्वेश्चन। For what kinetic energy of the neutron will the associated de Broglie wavelength? देखो अब लैम्बडा दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है, तो वही, बट देखो ये फोटोन है कि कौन है, न्यूट्रॉन है। Neutron. हाँ, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, p स्क्वायर बाई 2m, h स्क्वायर बाई 2m लैम्बडा स्क्वायर। लैम्बडा दिया हुआ है, क्या फाइंड करना चलेगा, जरूरत है कराने की? Yes. No, sir. अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करना है आपको, टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी देंगे आपको, तो आपको यहाँ पे दो चीज फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है और उसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT, तो टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही लेना है। सपोज कि अगर सेल्सियस में अगर आपको देते हैं तो भी आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, और ये 3/2 kBT करोगे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे वैसे मेंशन नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में, बट आपको मेंशन करेंगे बोर्ड के एग्जाम के अंदर कि 1.31 10⁻38 10⁻23 होता है। ये 3/2 kBT करो तो आपको k मिल जाएगा, फिर k के ऊपर से आपको √2m को करोगे तो p मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा, h by p करोगे तो आपको लैम्बडा मिल जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट ओके? Yes, sir. चलो, अब 18 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसमें ऐसा है कि आपको ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन का वेवलेंथ एंड फोटोन का डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम ही है। तो ये यहाँ पे थ्योरेटिकल प्रूफ है, थोड़ा आप देख लेना। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, 18 क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ फोटोन का एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रेडिएशन का वेवलेंथ सेम ही है, ऐसा प्रूव करना है। तो ये इसमें कुछ भी नहीं है, आप एक दो स्टेप का करना है। ये ट्राई 18 क्वेश्चन मैं आपको खुद होमवर्क में दे रहा हूँ, ओके, जस्ट ट्राई इट आउट। एंड द क्वेश्चन नंबर 19 एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर, लास्ट वन और with respect to our syllabus. So what is the de Broglie wavelength of nitrogen at the temperature 300 Kelvin? तो अभी तो किया, बट यहाँ पे थोड़ा अच्छा है, नाइट्रोजन की बात है। तो देखो पहली बात तो ये है कि आपका लैम्बडा जो है ना वो h by p है, दैट इज h upon √2mk, where काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये हो जाएगा h upon √3m kBT। तो इसका मतलब कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो पता है 1.38 10⁻23, टेम्परेचर भी पता है 300 केल्विन, h भी पता है 6.626 10⁻24 33 होता है। मास आपको फाइंड करना है, पहले तो मास फाइंड करना है भैया। तो हमको है ना एटॉमिक मास ऑफ द नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो एटॉमिक मास जो है ना वो 14.0076 U, U का मतलब होगा 1.66 10⁻27, 1 U इज इक्वल टू दिस मच kg। तो U को मैंने kg में कन्वर्ट किया, बट ये एटॉमिक मास है। और नाइट्रोजन जो गैस होता है ना, मोलेक्यूल जो होता है ना, उसमें क्या होता है, N2 होता है। तो आपको नाइट्रोजन मोलेक्यूल की बात करनी है, तो मास कितना रहेगा भैया, 28.
इंटू 2 होगा, ये आपको देखना है, ये समझना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो मास पहले तो ये डबल करना पड़ेगा, वो पता चला आपको ये डबल क्यों हुआ, और फिर तो आपको जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे जो आपके एज पर बोर्ड जो है सिलेबस में, वो सब खत्म हुए। मैं यहाँ पे मेरा लेक्चर भी यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वापस से हम मिलेंगे ट्यूसडे को, वहाँ पे ये चैप्टर पूरा खत्म करेंगे हम। तो कल वैसे JEE एज पर द शेड्यूल है, और कोई चेंज होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप द्वारा मैसेज भेज दूंगा। आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स।